Colonel Ashutosh Sharma, the commanding officer of 21 Rashtra Rifles, a hero, एक ऐसे वीर जिन्होंने 2 मई 2020 को हंदवारा नॉर्थ कश्मीर में एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त किया. Now, let me tell my viewers, it is very rare कि एक commanding officer is killed in action. अगर आप इंडिपेंडेंस से लेके आज तक भी देखें तो हार्डली 10 to 12 कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया होगा फॉर द कंट्री इन लाइन ऑफ ड्यूटी. दिस व्हाट आई मीन इज दैट आशुतोष सर मेड अ चॉइस. दिस वाज हिज चॉइस. ही चोज our protection, safety and love for the country over his own breath. This is the kind of valor and this is the kind of patriotism Colonel Ashutosh Sharma was about. अब उनकी आर्मी लाइफ के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उनके लाइफ के हर उस पहलू के बारे में जिसके बारे में हम नहीं अब तक जान पाए हैं. वो कैसे बेटे थे, कैसे भाई थे, कैसे पिता थे, कैसे हस्बैंड थे और इन सब से बढ़कर वो कैसे इंसान थे. आज आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव समहाउ बीन एबल टू मीट हिज ब्रदर मिस्टर पीयूष शर्मा सर, अ very proud brother of Colonel Ashutosh Sharma. Welcome sir to the channel and thank you so much for taking out time. Thank you so much. Let's start with, we want to know everything. तो आपका बचपन कैसा था आशुतोष सर? हाउ वाज ही लाइक अ चाइल्ड? ही वाज योर यंगर ब्रदर. क्या आप लोग मस्ती करते थे? कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की टू जॉइन द आर्मी? आई नो कि आपके फादर या आपकी मॉम आर्मी बैकग्राउंड से नहीं थे. योर फादर वाज अ सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर. So what inspired Ashutosh sir to choose the uniform and just everything about your childhood with him? So Ashu was just 1.5 year younger to me. Okay. Yeah. So God made us brother, but we were more of a friend actually. हाँ. So बचपन से ही हमारे बदमाशियाँ शैतानियाँ सब साथ में हुई, and even we started going to school together. Oh. Being the elder one, I had to go early, but I used to skip my lunch. So when mom used to ask why you are skipping the lunch, so I used to say I'll have lunch with bhai only. So Ashu had to go early school so that we both of us go and we have lunch together, and so he had to go start schooling early. Okay. So this was the kind of bonding we had right from the day one actually. And I vividly remember the day when he was born and the ceremony was happened. I was just 1.5 year elder, but I still remember everything. तो भी याद है आपका? इतने छोटे थे? Exactly. हाँ. Wow. तो मुझे एक चीज याद है कि हाँ. पंडित जी आए थे, किस हाँ. तरह से पूजा हुई थी, माँ आशु को गोद में लेके बैठी हुई थी. हाँ. तो I remember each and every moment of it. So there our journey started. Ashu was a very naughty fellow, जैसे कि घर के सबसे छोटा बच्चा होता है. And we are 3 siblings. हमारी सबसे बड़ी सिस्टर हैं, फिर मैं हूँ और फिर कर्नल आशुतोष थे. तो being the youngest one, so naughty, a bit of pampered. तो this is how Ashu was. And शैतानियाँ करना, बदमाशियाँ करना, हम दोनों हमेशा साथ होते थे उसमें. अच्छा, पर वो शैतान थे? That is very surprising. Yeah, he was very naughty. He is known for his बदमाशियाँ. अच्छा. हाँ. क्योंकि जो वो बड़े होके जो उनका एक वो demeanor था, you know, Yeah, so balanced and calm and composed. It's very surprising कि वो एक naughty बच्चे थे. I'll take you to the entire journey of हाँ. Ashu to the legendary Colonel Ashutosh. So Ashu बहुत शैतान होता था. शैतान इतना होता था कि हम किसी के घर गए तो ऑब्वियसली किसी ने कुछ खाने को दिया तो एक मुझे देता था, एक आशु को देता था. तो आशु ने एक ले लिया, दूसरा हाथ बढ़ा देना. ये किस लिए? ये मम्मी के लिए. Oh, wow. And if somebody comes to our place, so मैं बोलूंगा अंकल आइए, आंटी आइए, मम्मी ने लड्डू बनाए हैं. And आशु वो तो खत्म हो गए. So this was Ashu's style, right? And very firm in his belief and very firm in his I must say whatever he will think he will do it. Decision. Right from the early age, very firm in his decisions. So that was Ashu. And एक बार अगर उसको किसी से गलत लग गया तो then he will never forgive that person. And शैतानी का हालत ये थी कि शैतानी करी एक दिन
और शाम का टाइम था तो मम्मी ने पिटाई कर दी। तो बाय द टाइम पापा ऑफिस से आ गए तो पापा कुड सी कि आशु रो रहा है, तो बोला अरे भाई इसको क्यों मारा, ये तो छोटा बच्चा है, इसको मत मारा करो। ठीक है, नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम बदमाशी सेम पिटाई। देन आशु इज वीपिंग स्टैंडिंग एट द गेट। पापा कह रहे थे मैं तो छोटा हूं मुझे मत मारो। तो माँ टोल्ड कि तुम तो जिंदगी भर ही छोटे रहोगे, इसका मतलब तुम शैतानी करोगे तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ badmashia and the memories we have for Ashu. So this is how Ashu was, and as we started growing up together, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ती गई, बदमाशियाँ करनी, बदमाशी करके कई बार पेरेंट्स को नहीं बताना, एक ने दूसरे को पिटाई कर दी, चोट लग गई तो बताना नहीं, तो ऑल दिस काइंड ऑफ जो एक सिबलिंग्स में होती हैं, सो वी हैव गॉन थ्रू दैट। एंड बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वी हैड so much of love bonding, our parents were very good। और या यू राइटली सेड कि आर्मी में नहीं थे, बट मेरी मदर की तरफ से रिलेशन में काफी लोग आर्मी में थे। अच्छा। हाँ, सो वी हैड अ बैकग्राउंड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स इवन, सो वी हैड दैट। एंड उसके वहां से एक इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हुई। एंड धीरे धीरे फिर जब हम वी वर इन 10th तो बोथ ऑफ अस जॉइंड एनसीसी। Okay. So we did together NCC. So 4 years I was also in army uniform, Ashu was also in army uniform, and we did a great advanced level of NCC. हमने काफी राइफल फायरिंग, पिस्टल फायरिंग, LMG फायरिंग, कैंप्स, we represented both of us represented UP। हमने UP को रिप्रेजेंट किया ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन कैंप में। आई यूज टू बी दी सीनियर अंडर ऑफिसर, आशु मेरा जूनियर अंडर ऑफिसर होता था। अच्छा। तो आशु ने मुझे 4 साल सैल्यूट मारा है। सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड शुरू से ही था, एंड आवर पेरेंट्स वर आल्सो इंक्लाइंड कि दैट वी शुड गो फॉर द यूनिफॉर्म जॉब। सो हम दोनों भाइयों ने यूपी सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दिया। अच्छा। समहाउ आशु कुड नॉट क्लियर, आई क्लियर्ड इट। सो that was the thing। I never went to Sainik school, that is the other story। Achha। But I cleared the Sainik school also। So you also wanted to join the army? Exactly। Oh, Exactly। okay। So हम दोनों भाइयों का एक ही ड्रीम था हाँ। कि we both of us wanted to go in the army। हाँ। And then came 1988। That was the year when I was in 10th, Ashu was in 9th। And that day, one day, fine day, my father lost the job। Oh। Yeah, because of some circumstances, he lost the job। He was in the government job, he was in class 1 job, but he lost the job, and that was the great turning moment of our life actually। जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, फादर बीइंग द अर्निंग सोर्स, एंड फादर फॉर द फर्स्ट टाइम केम फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड टू बिकम अ क्लास 1 ऑफिसर। तो पापा और मेरे चाचा जी हैं, हम दो भाई हैं, तो दोनों ही दे डिड एक्सेप्शनली वेल। चाचा जी अगेन अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर PhD। तो दोनों भाइयों में भी ऐसे ही प्यार था जैसे हम दोनों भाइयों में है। हाँ, हम दोनों भाइयों में सेम ऐसे ही प्यार है जैसे हमारे चाचा जी और हमारे पापा में होता था। वी लॉस्ट पापा इन 2011 रादर। सो पापा इज नो मोर। तो 88 में फादर लॉस्ट द जॉब, आई वाज इन 10th। एंड दैट डे उस टाइम मेरा बोर्ड का पेपर था 10th का, आई स्टिल रिमेम्बर, इंग्लिश का पेपर था। एंड नेक्स्ट पूरी रात हम लोग सोए नहीं। एंड नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का पेपर था बोर्ड का, एंड आई टॉप द डिस्ट्रिक्ट। वाओ। सो दिस इज हाउ द स्ट्रगल, द हार्डशिप, एंड दिस इज हाउ वी वर बिकमिंग इंटरनली स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम। सो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, एंड that is the different thing। Father got the job again। अच्छा। almost after 12 years। Oh। Yeah, so 12 years he was without job, then he won the case, he got everything। but that the childhood got shattered actually। The childhood got shattered। 88 was the time। and वो एक रियलिटी चेक, एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का। हम और आशु यही बात करते थे, हमेशा बात करते थे, मीन्स अभी भी वेरी रिसेंटली तक हम यही बात करते थे कि अगर वो शायद उस टाइम का ये नहीं होता, हार्डशिप्स नहीं होती, और तो वो शायद इतनी बॉन्डिंग या वो भी नहीं होती। सो यू ऑलवेज से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो परहैप्स वो था, बट यस उससे हमारा पूरा बचपन एकदम टूट गया।
बचपन के हमारे सपने, बचपन का हमारा सारा कुछ टूट गया एंड एक अलग ही माइंड सेट हो गया. एंड बाय द टाइम 1993 आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन. सो बीइंग द एल्डर सिबलिंग, so I had to start the job. Okay. So that is why I had to sacrifice my army life, my passion to go in the army. Oh, so you must be what, as young as 21 when you started Yeah, working? 20 exactly. Oh wow. Exactly 20 I started the job. Okay. But Ashu sir went on to आशु को मैंने ये इंश्योर किया कि वो अपने सपने को परस्यू करे एंड उसको किसी भी तरह से, किसी भी फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरह से ये चैलेंज नहीं आने दिया कि वो अपना इसको पूरा ना करे. सो उसको मैं एकदम हीरो बना के रखता था. एंड उसको बहुत हमेशा से ही हैड दी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक्चुअली. एंड यू वुड एग्री विद मी, एक फौज में जाने के लिए ऑफिसर लाइक क्वालिटी बहुत मैटर करती हैं. एंड दैट ऑफिसर लाइक क्वालिटी कम्स right from your early stage. I always keep saying कि you cannot become officer in just one day, or nobody can teach you how to become an officer actually. आपको ये पूरा लाइफ एक जर्नी है. You will have to mentally become an officer, and then only gradually you will become officer. True. So that is what it is. So Ashu had officer like qualities right from the day one. उसको अगर उसके पास 2 ड्रेसेस हैं, बट 2 ड्रेसेस बहुत बढ़िया होंगी, डजंट मीन कि बहुत ब्रांडेड होगी या व्हाटएवर इट इज, बट वो एकदम फिट एंड फाइन. आप उसकी कोई भी आप सिंस बर्थ से लेके, मतलब जब से वो उसने संभाला हो और लास्ट डे तक की अगर आप कोई भी फोटोग्राफ देखोगे तो यू विल फाइंड हिम एब्सोल्युटली फुल्ली ड्रेस्ड, स्मार्ट एकदम. हाँ, सो दैट व्हाट ही वाज. तो आशु सर को 13 attempts लगे थे to clear SSB. Now he would always clear the written exam, but you know the aspects that are not really in your hand of the exam, उन किसी भी वजह से वो हो सकता है. He cleared SSB in the 13th attempt, which was his last attempt. Make it or break it. उस जर्नी के बारे में सर कुछ बताइए कि उन्होंने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा और किस डेप्थ की उनकी पैशन होगी for the army to give it for 13 times. ट्रू. I told you, no, फर्स्ट जब से बचपन से ही अगर उसने कुछ गलत भी कर दिया तो आके बोल देगा मैंने ये गलत किया है. उसके लिए उसको डांट मिले, सजा मिले, व्हाटएवर इट इज, बट वो ही विल बी फर्म इन हिज डिसीजन एंड फर्म डिटर्मिनेशन से आके बोलेगा मैंने ऐसे किया है या मुझे ऐसे चाहिए या नहीं चाहिए. सो दिस वाज हिज मेंटल एक्यूमेन एक्चुअली. सो ही वाज लाइक दिस ओनली. सो he decided to go in army and जिम करना, हम दोनों भाई जिम जाते थे, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, एवरीथिंग. और उसके बाद अपना बहुत बैलेंस डाइट खाना और पढ़ाई करना, पूरी रात पढ़ाई करता था वो. एंड यू राइटली सेड कि वो 13th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट ही गेव दी रिटन, गॉट क्लियर्ड. सेकेंड गॉट क्लियर्ड. थर्ड गॉट क्लियर्ड. एंड उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रिजल्ट आता था. इस टाइम का इंटरनेट एरा नहीं था, तो यू हैव टू बाय ए न्यूज पेपर दैट वाज कॉस्टिंग 2 रुपीज और उसमें आता था वो रिजल्ट. तो आपको जाके रिजल्ट देखना पड़ता था, उसमें न्यूज पेपर से वेंडर से लेके आना पड़ता था. तो इनिशियल फर्स्ट सेकेंड टाइम तो आशु गया उसको पेपर लेने और रिजल्ट देखने. उसके बाद वो रिजल्ट लेने ही नहीं जाता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखने ही नहीं जाता था, क्योंकि ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये तो मेरी मेहनत है, इसको तो मुझसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता. सो ही क्लियर्ड फर्स्ट टू 13th ऑल रिटन. एंड बाद में कभी फ्रेंड्स उसके फोन करके बताते थे या डायरेक्ट यूपीएससी से कॉल लेटर आ जाता था कि आपका रिटर्न क्लियर हो गया है, तो इस बोर्ड में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है. सो ही वॉज सो क्लियर मीन्स कि मुझे अपनी मेहनत से कोई कुछ नहीं कर सकता. कि कई बार बैच वॉश आउट हो जाते हैं, कोई एक जने ने बदमाशी कर दी, फौज का उसूल है कि आप सबको आप वो कर देते हो, वॉश आउट कर देते हो. सो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, बट हर बार वो रिजेक्ट होता गया. बट 2 चीजें उसको बहुत स्ट्रांग बनाती गई. हर रिजेक्शन से वो और स्ट्रांग बनता गया. जब एसएसबी के गेट से बाहर निकलता था तो गेट पे खड़ा होकर गेट की तरफ देख के सैल्यूट करता था और बोलता था एक दिन मैं वापस आऊंगा यहाँ पे.
वाओ, सच अ लेसन फॉर द यूथ ऑफ टुडे कि हम इतनी छोटी बातों से डीमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे जिस बातों से आप बहुत ही डीमोटिवेट हो सकते हैं, उससे सर ने मोटिवेशन ली एंड वेंट ऑन टू गिव एसएसबी 13 टाइम्स। आई रिमेंबर हिज कोर्समेट टेलिंग मी कि एसएसबी में सबको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। जब आशुतोष सर का चेस्ट नंबर अनाउंस किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। दैट वॉज द काइंड ऑफ पैशन ही हैड for the Indian Army.